Hello everyone, in this video I am going to explain you the fourth chapter of your book Democratic Politics, and the chapter's name is Gender, Religion and Caste. In this chapter I am going to explain you the various social differences based on gender, religion and caste. And we also read that how these differences expressed in politics and whether the political expression of these differences healthy for democracy or not healthy for democracy. So students, in this video I am going to explain only this part, that is gender. What is gender division? Gender division tends to be natural and unchangeable. It stands to be natural and unchangeable. However, it is not based on biology. It is based on social expectations and stereotype. That means कि gender division क्या होता है, वो unchangeable है, but gender division biologically नहीं है. भगवान ने वो division नहीं किया है, बल्कि वो किसने किया है? सोसाइटी ने किया है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस ने किया है, स्टीरियोटाइप ने, उनके पिछड़ेपन ने, उनके पुरानी सोच ने ये जेंडर डिवीजन को क्रिएट किया है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? Boys and girls in a family basically brought up with the view that women are only in the family to do the household works and men tends to do the outside work. So this is the actually give a way to the sexual division of labor. अब ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है कि अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक itself. It is a system in which the work inside the house, it is the system in which the work inside the house is done by the women of the family or organized by domestic helpers. However, it is not so that the household works, cleaning, cooking, washing clothes cannot be done by the men. Men can also do these works. However, when they paid for it, they are ready to work for that. कि घर में तो वो ये काम करने को रेडी नहीं होते, लेकिन अगर बाहर उन्हें पैसा मिल रहा होता है तो they are ready to do that work. लाइक हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टेलर्स हैं वो मेन होते हैं, मोस्ट ऑफ द शेफ्स हैं जो होटल्स में, और वो भी कौन होते हैं? मेन होते हैं, लेकिन वो घर पे ये काम करना पसंद नहीं करते. इफ़ यू टॉक अबाउट द वुमेन इन विलेज एरिया, दे डू ऑल द वर्क, दे फेच वाटर, they even help their husbands in harvesting time also. They do all household works also at home, but they are not paid for it. वो बाहर भी काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं, लेकिन उनको उससे पैसा नहीं मिलता. In middle class families, what we have seen that they work in offices also and they work more than men. उनसे ज़्यादा वो वर्क कर रही होती हैं, बट स्टिल दे आर नॉट गेट द इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी एज कंपेयर टू मैन. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? दिस इज़ द स्टीरियोटाइप. ये पुरानी सोच है. एक ये हमने अपने अंदर धारणा बना ली है कि विमेन ही हैं. हम बचपन से ही ये सिखा रहे होते हैं लड़कों को और लड़कियों को कि ये लड़कियों का काम है, ये लड़कों का काम है. सो दिस इज़ द रीज़न वाई ये जो क्रिएट हो गया है जेंडर डिवीजन, वो किसने क्रिएट किया है? हमारी सोच ने क्रिएट किया है, हमारी एक्सपेक्टेशंस ने, सोशल एक्सपेक्टेशंस ने उसको क्रिएट किया है. Although the women constitute half of the humanity, but still their representation in politics is very low.
कि हालांकि जो विमेन हैं, अगर हम देखें ह्यूमैनिटी में उसका 0.5% है, लेकिन अगर हम उसे लीगल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करें तो उसमें उसका स्टेटस काफ़ी लो है. So this is the reason why many movements has been started for giving the political and the legal rights to the women. And these movements started by some radical women for providing some legal and political rights to the women. So these movements are called feminist movement. यानी वो feminist movement वो movements होती हैं जिसमें women's को उसके एक अच्छे स्टेटस को दिलाने की कोशिश की जाती है, लीगली भी और पॉलिटिकली भी उसको राइट दिलाने की कोशिश की जाती है, एजुकेशनली उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, उसके स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश की जाती है. तो वो सभी मूवमेंट्स जो ये वो सारे ही आंदोलन जो हैं जो विमेन को कुछ ना कुछ अधिकार दिला रहे होते हैं, दैट आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट. नाउ ऑल्दो हम ये देखते हैं, अब हमने सेकंड पार्ट इसमें देखा था ना कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट and how these differences expressed in politics. If we talk about the social, if we talk about the gender division expression of politics, that is good for the women. कि अगर हम इस gender division के difference को हम पॉलिटिकली देखते हैं तो पॉलिटिकली उसको अगर हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं या पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश करते हैं तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर द वुमेन बिकॉज इट प्रोवाइड्स देन सम राइट्स. वो उन्हें क्या प्रोवाइड कर देगा? राइट्स प्रोवाइड करेगा. As we have seen कि most of the countries in the world now gave equal rights to the women. As far as concerned to our country, it is very less. Women's का जो representation है अगर हम देखें politics में, however it is very much less than a men. और women's are still lag much behind men in following aspects. कि अभी हम ये कुछ ऐसे aspects देखेंगे जिस पर ये देखेंगे women बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है इन aspects पे as compared to men. Like first is literacy rate. If we talk about the literacy rate, तो हम ये देखते हैं कि although literacy rate हमारा कितना है according to census 2011 74.04% is there. अब उसमें अगर हम बात करें बॉय चाइल्ड की अगर हम बात करते हैं लिटरेसी रेट में तो उसमें 82.14% जो है उनका कंट्रीब्यूशन है इस 74 में भी. और साथ में जो विमेन का है 65.46% है. दैट मीन्स इन लिटरेसी रेट विमेन्स आर लेग बिहाइंड द men because in most of the families boys are given more preference as compared to a girl child. So drop out cases जो होते हैं जितने भी कि जल्दी स्कूल को छोड़ देना वो गर्ल्स के मामले में ही देखने को मिलते हैं. कि अगर एक गरीब परिवार है तो वो कोशिश करेगा कि वो अपने लड़के को पढ़ाए ना कि वो लड़की को पढ़ाए. तो इस एस्पेक्ट पर लिटरेसी रेट में भी कौन पीछे है? विमेन पीछे हैं. नाउ in jobs, how in jobs women are lag behind men? As far as concerned to highly paid jobs में it was seen that ये भी देखा जाता है, it is seen that most of the high positions are given to the men only. कि mostly जो managers हैं, CEO हैं companies के, वो सब किनको preference दी जाती है ऐसी companies में, businesses में men को दी जाती है as compared to women. Next is no equal pay for equal work. अगर हम इस aspect पर देखें women को तो भी वो lag behind है. That means although the equal Remuneration Act was passed in 1976. Equal Remuneration Act was passed in 1976 and according to this act, equal pay must be given to a
इक्वल वर्क, कि इक्वल वर्क के लिए, समान काम के लिए समान वेतन देना ज़रूरी है. बट एक्चुअली इट इज़ नॉट सीन इन द केस ऑफ, इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, स्पोर्ट्स. अभी भी अगर हम देखते हैं कि हमारी जो क्रिकेट टीम है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है एज़ कम्पेयर टू विमेंस की टीम को. सिनेमा की बात करें तो हीरो को ज़्यादा पैसा मिल रहा होता है एज़ कम्पेयर टू जो हीरोइन होती है. तो इन फील्ड्स में भी हम देखते हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है. तो इन एस्पेक्ट, इस एस्पेक्ट पर भी विमेन कैसी है, लेग बिहाइंड है, मैन के पीछे है उससे. सो एज फार एज कंसर्न टू सेक्स रेशियो ऑल्सो, अगर हम सेक्स रेशियो में भी देखें, व्हाट इज सेक्स रेशियो, कि नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड पर 1000 बॉय चाइल्ड, कि अगर नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड है वो भी काफ़ी कम है. अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, बिकॉज इन आवर सोसाइटीज मोर प्रेफरेंस इज गिवन टू अ बॉय चाइल्ड एंड गर्ल्स हैव टू बी अबॉर्टेड बिफोर गेटिंग द बर्थ. उनको मार दिया जाता है पहले ही. तो जिसकी वजह से सेक्स रेशियो जो है बहुत ही डाउन है. जैसे कि अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग की हम ये बात कर रहे हैं, तो 2011 के अकॉर्डिंग 919 जो सेक्स रेशियो है वो रहा है. इवन कुछ स्टेट्स हैं हमारे, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, इसके अलावा हिमाचल है या राजस्थान है, वहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ही डाउन है. इवन 800 से भी डाउन है, जो कि सही नहीं है. तो इस मामले में भी विमेंस कैसी नज़र आती हैं, लैग बिहाइंड नज़र आती हैं. On the other hand, political representation. If we talk about the political representation, what we have seen कि last हमारे जो लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें पहली बार ये देखा गया कि नियर अबाउट 14% के करीब जो विमेंस का रिप्रेजेंटेशन था वो रहा है, जो अब तक का ज़्यादा रहा है सबसे. 2014 में 12% रहा था उनका. अब लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 5% के करीब ही है, नियर अबाउट. तो इस तरह से वो ज़्यादा नहीं है. तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है. ऑल दो स्टेप्स आर टेकन, स्टेप्स लिए गए हैं दैट आर टेकन इन, अगर हम बात करें रूरल लोकल गवर्नमेंट की या अर्बन लोकल गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर विमेन को 33% सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है. ऑल्दो द विमेन रिप्रेजेंटेटिव बिल ऑलरेडी देयर इन द पार्लियामेंट, उसमें उसको पार्लियामेंट में भेजा गया है, बट फॉर द डेकेड नो एक्शन हैज़ बीन टेकन फॉर दैट बिल. कि ये माना जाता है कि लोकल बॉडीज़ में अगर 33% सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है तो उन सीट्स को रिजर्व लोकसभा में भी कर दिया जाए और साथ में स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी कर दिया जाए. हालांकि बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है लोकसभा में, लेकिन डेकेड्स हैव बीन पास्ड, कि बहुत सारे साल निकल गए हैं लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है विमेंस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए. कहाँ पर, पॉलिटिक्स में. सो इस तरह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी अगर हम देखें तो विमेन का कंट्रीब्यूशन कम है मेन से. So here we completed these important topics that are sexual division of labor and feminist. Sexual division of labor हमने किया था, वो क्या होती है, a system in which the work inside the home is done by the women or organized by the domestic helpers. Feminist movement हमने किया. Feminist movement कौन सी movements होती है, all the movements that are done for getting some legal and political rights for the women are called feminist movement. अब women are still lag behind in different aspect. किन aspects पर पीछे हैं, लिटरेसी रेट में पीछे हैं, जॉब्स में पीछे हैं. अगर हम बात करें तो हाईली पेड जॉब्स की, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है आज भी विमेंस के लिए, सेक्स रेशियो बहुत ही कम है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका सोसाइटी में बहुत ही कम है. तो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज जेंडर.